Okay, so let's start this paper, and this is October November 2022 variant 22. This paper number 2. So let's move on to the first question of this. Now, the first question says that draw a line to connect each programming concept to the most appropriate description. That means I have 1, 2, 3, 4, 5 programming concepts, and certainly I have some descriptions along with that. So I need to match it with the correct ones. So first of all, I have this is carrying out an action multiple times within a loop structure. Carrying out a single action or an action multiple times within a loop स्ट्रक्चर एक ही एक्शन है हमारे पास जो हम मल्टीपल टाइम्स को बार बार करे जा रहे हैं एक लूप स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा आएगा? दिस हैज टू बी अ रिपीटिशन। Then just after the second one, this is adding together the numbers in a list of numbers. That means that I am adding together. So adding together makes it totaling, क्योंकि मैं सारे numbers को total कर रहा हूँ। Third one is the tracking the number of iterations a program has performed in a loop. Tracking the number of iterations a program has performed in a loop. It's like tracking them like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is going to be like counting. Then branching off to take a course of action depending on the answer to a question. Branching off to take a course of action depending on the answer to a question. Branching off to take a course of action depending on the answer of question. That means that I'm selecting it something and I'm taking a course of action. Course of action कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले मैंने उसको select किया. So this goes for your selectional part because you are selecting it and then performing the action on that. फिर मेरे पास लास्ट वाला है. लास्ट वाला कहता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर. सो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसको ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होना है, तो दिस इज हैज टू बी अ सीक्वेंस. So this is for your question number 2. Question number 2 के बाद if I move on to question number 3, the question number 3 says that describe the use of verification on input of data when entering a list of items in stock into a database. Explain why this is necessary. I need to describe the use of verification on input of data when entering a list of items in stock into a database. So why is your verification necessary? I need to write for 3 points here. तो पहले तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बेटा verification is used to make sure that the items in stock do not change from the original when they are input. And I can also write it can be done by double entry method or by visual check method. And for the third mark, I can also say that it is also used to make sure that items are accurately copied. That items are accurately copied or not changed during the program.
तो वेरिफिकेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती हैं, दैट इज अ डबल एंट्री टैग चेक, दैट इज अ विजुअल चेक। मैंने यहाँ पे यही लिखा है, जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट फॉलोइंग द डेटा ट्रांसमिशन माय डेटा इज नॉट चेंज्ड। So, just after this, I have the fourth question. The fourth question says that describe one test of data that must be used to test if a program accepts valid data or not. So, one type of test data to check that if a program accepts valid input or not. अच्छा, valid की बात हो रही है बेटा, तो I can write here normal test data, जैसे कि कल वाली क्लास के अंदर भी मैंने कुछ टेस्ट डेटा बताए थे। तो नॉर्मल टेस्ट डेटा, और एंड व्हाई वुड आई यूज अ नॉर्मल टेस्ट डेटा? सो दैट डेटा would be accepted by the program. अच्छा, सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ डेटा और भी होते हैं जो एक्सेप्ट होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बट ये मैं आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि कल भी मैंने बताया था। तो और कौन कौन से ऐसे डेटा है जो एक्सेप्ट हो सकते हैं? एक डेटा आपके पास है बाउंड्री डेटा, आप बाउंड्री डेटा लिख सकते हो। या एक डेटा आपके पास है एक्सट्रीम डेटा, जैसे जो क्वेश्चन मैंने कल क्लास में कराया था। ये दोनों डेटा जो है आपके पास एक्सेप्ट हो सकते हैं। Now I have the fifth question. The fifth question says that the pseudocode should allow 500 marks to be entered into the algorithm. If the mark is 80 or greater, it is stored into an array for higher marks. एक सूडो कोड है, और वो सूडो कोड इज अलाउइंग 500 मार्क्स एंटर करने के एल्गोरिथम के अंदर। अगर मार्क्स 80 और ग्रेटर देन है 80 से, तो वो एरे के अंदर स्टोर हो जाता है। अगर मार्क्स आपके लेस देन 80 हैं लेकिन ग्रेटर देन है और इक्वल टू 50 है, तो इट इज स्टोर्ड इन एन एरे फॉर मिडिल मार्क्स। द रिमेनिंग मार्क्स आर स्टोर्ड इन एन एरे फॉर लोअर मार्क्स। द रिजल्ट फ्रॉम द एल्गोरिथम्स आर डिस्प्लेड एट द एंड। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मुझे चार एरर बताने हैं, और कितने एरर्स हैं? ठीक है, चार एरर्स हैं, और फिर चार एरर्स के साथ उनकी करेक्शन भी देनी है। तो फिर से जरा एक दफा सवाल पढ़ लेते हैं। सूडो कोड अलाउ कर रहा है 500 मार्क्स को एंटर करने के एल्गोरिथम के अंदर। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो स्टोर हो रहे हैं हायर मार्क्स के अंदर। अगर मार्क्स 80 से कम है या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 50 से, तो स्टोर हो रहे हैं मिडिल मार्क्स के अंदर। और जो मार्क्स बचे हैं वो स्टोर हो रहे हैं एरे के अंदर, जो लोअर मार्क्स के अंदर है। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हाई लिस्ट लिया, मिड लिस्ट लिया, लो लिस्ट लिया, मार्क्स मार्क्स एंट्री को जीरो किया, यहाँ लगाया रिपीट। अच्छा, जैसे ही तुम लोगों को रिपीट मिले ना, चेक करा करो कि ये रिपीट के साथ अंटिल कहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, अंटिल तो इसमें है ही नहीं। एक एरर यहाँ पे मिल गया। उसके बाद कह रहा है कि इनपुट मार्क्स कराए, मार्क्स इज दिस, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन हायर लिस्ट इक्वल्स टू मार्क्स एंट्री। सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि अगर मार्क्स यहाँ पे देखो 80 से ज्यादा या ग्रेटर देन है, तो स्टोर कराओ हायर मार्क्स में। ये भाई साहब कहाँ स्टोर करा रहे हैं? मार्क्स एंट्री में। पहला एरर ये रहा, दूसरा एरर ये रहा। अब चलते हैं तीसरे एरर की तरफ। हाई लिस्ट प्लस वन, ये सही है, एल सही है। अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, देन यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है मिडिल मिडिल मिड लिस्ट इज द वैल्यू ऑफ मार्क्स इज गिवन टू द मिड लिस्ट ऑफ मिडिल, whereas this should be supposed to, मिड लिस्ट के जो मार्क्स हैं वो आने चाहिए आपकी मिडिल लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे आना चाहिए मिड लिस्ट प्लस वन। ये आपका है तीसरा एरर। मिडिल मार्क्स आएगा, बिल्कुल यह है आपका तीसरा एरर। इसके बाद और आगे चलते हैं। हमने चार एरर तो निकाल लिए हैं, लेकिन और आगे देखते हैं। इसके बाद लाइन नंबर, ये सब सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, ये सही चल रहा है। अगर हम लाइन नंबर 22 के ऊपर आते हैं, तो राइट हियर लाइन नंबर 22 के ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट मार्क्स एंट्रीज 500। यहाँ पे होना चाहिए बेटा, ये वाला लूप लगेगा इधर, ये ऐसे चलता हुआ आएगा और ये यहाँ पे एंड होगा, और इस नेक्स्ट की जगह आएगा अनटिल।
तो ये सारे एरर्स मैंने आप लोगों को मार्क कर दिए हैं। पहला एरर ये रहा, दूसरा एरर ये रहा, तीसरा एरर ये रहा, चौथा एरर ये। अब पेपर में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले एरर नंबर 1 क्या है मेरे पास? एरर नंबर 1 में ले लेता हूँ, चलो अपनी लाइन नंबर 9 को। मेरा लाइन नंबर 9 एरर 1 है, तो यहाँ पे मैं एरर 1 के अंदर लिखता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर के अंदर हाई लिस्ट है, और यहाँ पे डेटा आ रहा है मार्क्स एंट्री का। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? इसकी करेक्शन होगी कि हायर के अंदर जो हाई लिस्ट है, दिस शुड यहाँ पे आना चाहिए मार्क्स। ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने इस एरर की तरफ। ये है हमारा लाइन नंबर 15 पे। लाइन नंबर 15 पे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि मिड लिस्ट इज इक्वल्स टू मिड लिस्ट। इसको होना चाहिए जो भी आपकी मिडिल लिस्ट है, ये यहाँ पे होगी इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट तो उसने कराया ही नहीं था। अब चलते हैं अगले एरर की तरफ जो है लाइन नंबर 17 पर। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि लाइन नंबर 17 पे लिखा हुआ है लोअर हाई लिस्ट इज इक्वल्स टू मार्क्स, और इसको होना चाहिए लोअर लो लिस्ट इज इक्वल्स टू योर मार्क्स। इसके बाद आ जाओ लास्ट पे लाइन 22 पे, जिस पे लिखा हुआ है आपके पास नेक्स्ट मार्क्स एंट्री। और इसकी करेक्शन क्या होगी बेटा? अंटिल मार्क्स एंट्री इज इक्वल्स टू 500। तो ये हो गया हमारा। इसमें कोई कंफ्यूजन? डू यू हैव एनी क्वेरीज? किसी को कोई सवाल? रिपीट अंटिल वाली करेक्शन कैसे लिखते हैं फिर भाई? रिपीट तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इसके बाद ये नेक्स्ट के बाद इसने अंटिल नहीं लिखा हुआ। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द करेक्टेड एल्गोरिथम नीड्स टू बी चेंज सो दैट एनी नंबर ऑफ मार्क्स may be entered and the algorithm runs until the user tells it to stop. Write the new pseudocode statement that would be needed to achieve this and state where this algorithm would be placed. मेरे पास एक कैरेक्टर एल्गोरिथम है जिसको मुझे चेंज करना है ताकि नंबर ऑफ मार्क्स मेरे एंटर हो सके, एंड आई नीड टू, तो इस अब जो पूरा सूडो कोड हमने ऊपर ठीक किया है उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम लोगों का कोड देखो। सबसे पहले इस कोड को तुम लोग लाइन नंबर 9 तक पूरा सेम लिखोगे। सिर्फ लाइन नंबर 9 आप लोगों की चेंज हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की लाइन नंबर 15 चेंज होगी। लाइन नंबर 15 के बाद लाइन नंबर 17 चेंज करना, लाइन नंबर 22 चेंज करना, पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इसके बाद फ्लो चार्ट है, और फ्लो चार्ट के बाद डेटाबेस है। पहले काम करते हैं, क्या डेटाबेस कर लेते हैं। A school uses a database table, ASIS, to keep a record of internal assessments and the number of candidates for each of the subject in its curriculum. The database only allow the data types text, number, currency, and boolean. सबसे पहले क्या? स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द फील्ड सब्जेक्ट कोड एंड एग्जाम।
सब्जेक्ट कोड मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेक्स्ट के अंदर। एग्जाम्स एग्जाम्स मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आएंगे बेटा नंबर्स के अंदर। फिर लिखा हुआ है स्टेट वन रीजन वाई द कैंडिडेट फील्ड कुड नॉट बी ऑफ द बूलियन डाटा टाइप। कैंडिडेट फील्ड जो है वो बूलियन डाटा टाइप क्यों नहीं हो सकती। कैंडिडेट फील्ड आपकी बूलियन टाइप इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि द बूलियन डाटा टाइप कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। और जो द कैंडिडेट फील्ड है मेरे पास इट हैज मोर देन टू वैल्यूज, तो इस वजह से ये बूलियन नहीं हो सकती। यस, ग्रेट फराज। शो द आउटपुट गिवन बाय द क्वेरी एग्जाम्पल ग्रेड। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए करा देता हूँ। आउटपुट बनाना है क्वेरी एग्जाम्पल ग्रेड का, फील्ड इसने तीन दी हुई है। तो अगर हमारे फील्ड में सब्जेक्ट नेम प्रैक्टिकल और कैंडिडेट के अंदर टेबल ये सेलेक्ट होते हैं और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आते हैं और मुझे शो कराना है सिर्फ सब्जेक्ट नेम और कैंडिडेट, तो सब्जेक्ट नेम और कैंडिडेट, सब्जेक्ट का नेम ये रहा और कैंडिडेट का है ये रहा। मुझे इस वैल्यूज कौन सी लेनी है इसमें से, वो वैल्यू जो ग्रेटर देन वन है। सर इस पार्ट को स्किप कर दें। चलो कर दिया स्किप। इसके बाद थोड़ा सा टच इसका दे लेते हैं कुछ इस सिनेरियो बेस्ड सवाल का। इसमें से वेरिएबल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, कोड हम नहीं लिखेंगे। सवाल के अंदर लिखा हुआ है ऑल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स हैव मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफाई वन कांस्टेंट यू कुड यूज इन टास्क वन एंड स्टेट इट्स वैल्यू। टास्क वन पे जाओ, इसमें से कांस्टेंट निकालो। टास्क वन के अंदर सेटिंग अप बुकिंग सिस्टम, set up suitable data structure to store car license number, name of visitors who have booked car space. The data structure should have sufficient capacity to store each of 20 parking spaces. Allow a visitor to request a parking space on any day within the 2 week period by entering a number between 1 and 14 inclusive। ये आ गया। ये 1 से 14 आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ये तुम लोग लिख लोगे वन के अंदर। आइडेंटिफाई वन एरे, एरे कौन सी लगेगी वो भी टास्क वन में ही लिखा हुआ है। सेटअप अ सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर एरे को कहते हैं, क्या स्टोर कराना है, कार का लाइसेंस नंबर। तो एरे का नाम क्या होएगा, कार लाइसेंस नंबर। तो कांस्टेंट में लिख दो तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए, वैल्यू 14 आ गई, एरे कौन सी आ गई हमारे पास, कार लाइसेंस नंबर। और इसका यूज़ क्या है, इस यूज़ इसलिए होगी ताकि मुझे स्टोर कराना है, स्टोर द लाइसेंस नंबर ऑफ द कार्स टू बी पार्क्ड। फिर आपसे कह रहा है कि आप इसको वैलिडेट कैसे कराओगे, द इनपुट फॉर द डे नंबर जो 2 वीक के अंदर है। तो वैलिडेशन के लिए आप लोगों को पता है जो वैल्यू जिसमें वो सवाल में कह रहा है वो कह रहा है 1 से 14 तक। तो 1 से 14 तक बेटा मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ आपके पास एक रेंज चेक मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं पूरा लिख सकता हूँ कि रेंज चेक कुड बी यूज टू चेक फॉर वैल्यूज बिटवीन 1 से 14। और क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे टाइप चेक भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं टाइप चेक यूज कर सकता हूँ टू चेक फॉर इंटीजर वैल्यू
आई कैन ऑल्सो यूज अ रिपीट एंटर लूप, ये चेक करने के लिए कि वैलिड डेटा एंटर हुआ है या नहीं। फिर हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। खैर, ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपने पास एक काम ये करें कि इसको आप लोग अपनी अपनी बुक्स के अंदर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद इसका फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर मुझे बताओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं आप लोगों को खुद सॉल्व कराऊंगा। सिनेरियो बेस को छोड़ के अपने पास 2023 का जो है 2A और 2B, उसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। वो कंप्लीट अपने पास याद कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। वो प्रैक्टिस करके आओ ताकि फिर मैं आगे के सवाल कराऊँ 2023 के जो इम्पोर्टेंट है सिनेरियो बेस्ड।